Some devotees, all glories to Sri Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Srila Gurudev. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Krishnaya Vasudevaya, Krishnaya Vasudevaya, Devaki Nandanaya cha, Devaki Nandanaya cha, Gopakumaraya, Govindaya Namo Namaha, Govindaya Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya, Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Advaita Gadadhara, Sri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Next. So we welcome all the devotees for today's program, the event of the forthcoming Janmashtami program, which is coming on 3rd September, right? So as we are nearing for Janmashtami, so we should gear up ourselves. We should develop our consciousness in such a way that we can receive the mercy of the Lord. So today I would like to thank the temple management for providing me this opportunity to speak, to glorify the wonderful pastimes of the Lord. So I take these opportunities for my own purification and I seek all the blessings of the esteemed Vaishnavas here, so that I can do this service for the pleasure of Guru and Lord. So today we are going to see 4 main subjects. One is that Lord Krishna's transcendental appearance and his purpose for incarnations, and 6 sons of Devaki. Who are these 6 sons and why they are very important for us to know, and whom do they represent? This we will see. And then lessons we can learn from Vasudeva and Devaki. And then last we will see what does real Janmashtami means. What is the spirit of Janmashtami? So these are the 4 subjects we will be discussing. So first we will see Lord Krishna's transcendental appearance and purpose. So we know from Bhagavad Gita, this very famous verse, the Lord informs us what the purpose of his incarnation. So we can repeat this verse. Yada yada hi dharmasya, yada yada hi dharmasya, glanir bhavati bharata, glanir bhavati bharata, abhyuttanam adharmasya, abhyuttanam adharmasya, tadatmanam srijamyaham, tadatmanam srijamyaham. So whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, and a predominant rise of
religion, at that time I discern myself. Translation repeat. Whenever and wherever there is a decline in religious practice, O descendant of Bharata, the predominant rise of religion, at that time I discern myself. So the Lord explains here for the purpose for His incarnation. So Janmashtami means the day that Krishna is born, the day he appears, right? That's why we celebrate Janmashtami. So, does the Lord really appears on Janmashtami? What do you think? The Lord appears only on Janmashtami day? Right? The Lord is always here, right? Radha Bhavishwa is here, Gaurita is here, Jagannath Baladev Subhadra is here. We are coming every day and paying obeisances and praying to them. So what does it mean that He appears on a particular day? So He is always present, right? He is always present. But Srila Prabhupada gives the example, just like there is a sunrise at a particular time, every day there is a sunrise is there, right? And then, so it's like that. So Krishna appears at a particular time, and every day we see the sunset also, right? So that doesn't mean the sun is no more there. He is simply out of our vision. Due to our imperfect material senses, we are not able to see the sun. So just like now here it is very bright sunny day, but some part of the world, like if you take the western countries, America, it's evening time there. So we can't see this. They cannot see the sun there. But doesn't mean that sun is not there. So Krishna is always present. So when Krishna wants to wind up his pastime, and then he disappears from our sight. So therefore, we understand that the Lord is present always, but due to our imperfect material senses, we are not able to see Krishna all the time. Right? So, in the previous words to the Edahi Dharmasya, is a very important verse. Krishna is giving a hint. He is telling about his unique way, his appearance, peculiar way he appears. Ajopi san avyayatma bhutanam ishvaro apisan prakritim swam adhishtaya sambhavami atmamayaya. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates, and although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. So the Lord, He says that He appears in His original transcendental body, right? So His body never deteriorates, just like we living entities, our body is not like Krishna's body, right? We are transmigrating from one body to another body. We cannot live in this body eternally. So, but Krishna's body is not like that. He comes in his original transcendental form. The same eternal form. He appears every millennium after millennium. So Krishna does not have to change his body. So this we need to understand. Many people, even in India, they are not aware about Krishna's unique features, his appearance and disappearance, his body. They think Krishna, when he comes to the material world, he also assumes the body just like any one of us. So which is a very wrong idea. It's totally, it's not acceptable at all. The acharyas, so therefore we need to learn from the proper acharyas about to know about Krishna.
So to understand Krishna is not such an easy subject matter. This we are going to discuss. So therefore we have to read Bhagavad Gita as it is and learn from the proper bona fide sampradaya to understand about Krishna. So Krishna somebody can translate. Yeah. So your second mic. कितना लोग के हिंदी में प्रवचन चाहिए? समझ नहीं रहा। अभी जो भी बताया कुछ समझ में आया? नहीं आया? ट्रांसलेट करो। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है। Summarize what I so far what I have said. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी ने अब तक जो है ये हम जन्माष्टमी समारोह अब जन्माष्टमी हम मनाने वाले हैं, तो प्रभु का प्रश्न था क्या भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, और तब प्रभु बता रहे थे भगवद गीता का उन्होंने श्लोक बताया और उसमें बताया कि भगवान के जन्म का क्या कारण है, और भगवान का जन्म जो है जैसे ओके। तो आज प्रभु जो है इन 4 विषयों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है कि भगवान श्री कृष्ण के जो दिव्य जो उनका आने का जो कारण और जन्म के जो उनके दिव्य, ये भगवान की जो लीला है वो दिव्य होती है हमारे भौतिक स्तर पर, लॉर्ड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल अपीयरेंस। तो भगवान का दिव्य जन्म और दिव्य जो उनके आने का कारण है उस पे, उसके बाद देवकी के 6 पुत्र, वह किनको जो ये 6 पुत्र हैं वो किसकी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वासुदेव और देवकी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिलता है और जन्माष्टमी का क्या अर्थ है। हरे कृष्ण। इस श्लोक का हम लोग पढ़ा है। हाँ हरे कृष्ण। तो प्रभु ने बताया कि जैसे सूर्य जो है अभी हमारे पास यहाँ पे सूर्य है, हम जहाँ यहाँ बहरीन में हैं, यहाँ पे इस समय सुबह का समय है, सूर्योदय हो रखा है, पर संसार में कोई एक हिस्सा है जहाँ रात है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जहाँ रात है वहाँ सूर्य डूब हो गया। सूर्य तो सतत है, सिर्फ भेद है कि कहीं पे सुबह है और कहीं पर रात है। तो ऐसे ही भगवान है, भगवान जो है कहीं पे प्रकट होते हैं और कहीं अप्रकट होते हैं, पर वो सतत है, सनातन है। हरे कृष्ण। तो हम भौतिक जीवों का जो है जो आत्मा शरीर बदलती है तो शरीर परिवर्तन होता है, पर भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान अपने जो स्वरूप के साथ यहाँ आते हैं और यह लीलाएं उनकी बार बार होती रहती हैं, और हर समय वो अपने इसी भगवान श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में आते हैं। उनका कोई शरीर परिवर्तन नहीं होता, उनका शरीर और आत्मा एक ही है। So this same time, so Krishna appeared, he appears in scheduled time. That is described that he appears once in a day of Brahma during the 7th Manu, 28 million of the 7th Manu. So this is how he appears. तो भगवान श्री कृष्ण का आने का समय भी जो है उन्होंने निश्चित किया हुआ है, वो ब्रह्मा के एक दिन में और मनु के 7वें मनवंतर में जो है उनका पृथ्वी पे आगमन होता है। So that happened just 5,000 years ago. So we are very fortunate that we have taken birth very closely after Krishna's appearance in his pastimes. भगवान इस भूमंडल पर इस पृथ्वी पर 5000 वर्ष पूर्व आए। तो आध्यात्मिक गणना में ये 5000 वर्ष ये बहुत ही छोटा पीरियड है, तो बहुत छोटा कार्यकाल है। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भगवान के आगमन के इतने कम दौरान में हम लोग आ गए। So therefore, it is very difficult to understand about Krishna unless we hear from proper bona fide authorities. जब तक हम भगवान के जो
जो प्रतिनिधि हैं, जो परंपरा में हैं, अगर हम उनसे ये भगवान का ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो हमको कभी भी यह समझने को नहीं मिलेगा भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में। So therefore, Kunti Devi, she is praying her prayers to Krishna. She says that Naveda kaschit Bhagavan Shikeshitam Tava Ihamana Saranam Vidamanam. O Lord, no one can understand your transcendental pastime, which appear to be human and so are misleading. कुंती माता प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपकी जो लीलाएं हैं वो किसी के लिए भी समझने के लिए सरल नहीं है, क्योंकि वह ऐसी प्रतीत होती है जैसे एक साधारण मनुष्य द्वारा की जा रही है। So she also further says that you yourself descend amongst animals, men, sages and aquatics. Verily, this is bewildering. आप जो है अलग अलग जीव उसमें कभी जो है जानवर, कभी मनुष्य रूप में, कभी ऋषि रूप में, कभी पानी के जीव के रूप में आप प्रकट होते हैं, तो ये सब जो है हमारे को बुलावे में डाल देता है। So sometimes we heard from other dharmic people that they criticize, they say, they mock at us, saying that how is that God appears as like fish, tortoise, as half man, half lion, half man. All this incarnation, when we say that we are worshipping God like this, they mock at us. तो जो अधार्मिक लोग होते हैं वो हम पर कई बार हमारे पे व्यंग करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं कि तुम ऐसे कैसे भगवान की प्रार्थना करते हैं जो कछुआ रूप है और आधा सिंह और आधा मनुष्य का रूप है। So the Lord can do anything. He is omnipotent, so He can appear in any way He wants. So that's how we have to understand. किंतु भगवान तो भगवान है, वो तो उनकी इच्छा है, वो कभी भी कहीं भी कैसे भी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। So even great devotee like Kunti Maharani, she is bewildered by seeing this wonderful pastime of Krishna. तो कुंती माता जैसी भक्त भी जो है भगवान की यह जो लीला दिखाई है, दामोदर लीला, इसे देखकर वो भी मोहित हो जाती हैं। So Krishna, when he was a child, he used to steal butter, and so Mother Yashoda one day she punished him by tying up with the ropes. तो माँ यशोदा कृष्ण जो है माखन चुराया करते थे, तो एक दिन माँ ने कृष्ण को जो रस्सी से बांधा। So this pastime, when she was meditating, that how is that Krishna, who is being feared by fear personified, he is so fearful of his own mother. कुंती माता ये विचार करती कि वह कृष्ण जिनसे काल भी भयभीत होता है, वह कैसे अपनी माँ से भय के मारे भयभीत हो जाते हैं। So she is saying, this sight is bewildering me, that to see you see that you are fearful of your own mother. तो कुंती माता कहती हैं कि ऐसा ये आपका स्वरूप कि आप अपनी माँ से इतना भयभीत हो जाते हैं, तो मैं जो है मोहित हो जाती हूँ, मैं चकरा जाती हूँ। So therefore, it's important for us as Janmashtami, we should understand, and also to understand about Krishna's appearance, why he is appearing in different ways, what is the purpose, and so that we can explain to others also. तो इसीलिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ये समझना चाहिए कि भगवान क्यों आते हैं, उनका आने का क्या कारण है, जिससे कि कभी कोई हमको प्रश्न करे तो हम उसका उत्तर दे सकें। Maharaj Parikshit in Srimad Bhagavatam, he is asking Sukadeva Goswami to explain in detail about Krishna's incarnation. महाराज परीक्षित जो है वो अब प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण के ये आगमन के बारे में बहुत विस्तृत जो है वो पूछते हैं प्रश्न। I'll try to do in Hindi, otherwise it will be delayed. So, but you have to forgive me for all the grammar mistakes, right? Okay. My job is there to help me. Okay. So, Maharaj Parikshit से पूछा हुआ है, सुखदेव गोस्वामी से पूछा महाराज परीक्षित, तो आप कृष्ण के बारे में पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। तो क्योंकि इसका 9th स्कंद में अंत में सुखदेव गोस्वामी सिर्फ 2 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का पूरा वर्णन बता दिया। तो महाराज परीक्षित लेकिन उससे
शांत कुछ नहीं हुआ। उनको श्री कृष्ण के बारे में बहुत डिटेल से उनको जानकारी करने की बहुत इच्छा था। तो इसलिए वो महाराज परीक्षित ने पूछा कि कृष्ण भगवान कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उसके बारे में आप पूरा बता दीजिए, और जो सवाल मैं नहीं पूछ रहे उसको भी आप उसको जवाब देने का, जो पूछ रहे और जो जवाब नहीं पूछ रहे, जो भी आपको मालूम है कृष्ण भगवान का, उसको बारे में मेरे को आप समझाइए, क्योंकि मैं इतना आकर्ष है मेरा कृष्ण भगवान के बारे में जानने के लिए। तो कृष्ण भगवान का उसका कैरेक्टर का ऊपर बहुत चर्चा है इंडिया में, और बहुत लोग सोच रहे हैं कृष्ण भगवान एक तो मायाजाल और मैजिशियन जैसा है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो देयरफॉर एक कंट्रोवर्सी जो कृष्णा का ऊपर हो जाता है वो बहुत साल से है, अभी नहीं है, बहुत पहले से कृष्ण भगवान के ऊपर गलत समझाने बहुत लोग हैं। तो इसलिए महाराज परीक्षित अभी अगर श्री राम के बारे में किसी को पूछो, आप बताएंगे सब लोग हाँ श्री राम तो सब सीधा है, उसको कैरेक्टर में कुछ दोष नहीं है। लेकिन कृष्ण भगवान बोलेंगे तो हाँ उनका जो एक्टिविटी है वो बहुत मिस्टीरियस है, समझने के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो बार बार पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को बताने के लिए। तो क्यों कृष्ण भगवान ऐसा लीला करता है, इसको ऊपर हम लोग मोहित हो जाता है, क्यों उसको ऊपर विचलित हो जाता है, इसका कारण यही कि ये तो 4 युग, जब कृष्ण भगवान का लीला अंत होता है द्वापर युग के बाद कलयुग आने वाला है। तो कलयुग में इसका मतलब क्या है, कलयुग में फुल ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी, सबको भगवान का ऊपर कंफ्यूजन होने का। तो अगर भगवान का ऊपर श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो लोग के पास भगवान का द्वेष नहीं होएगा। तो अगर भगवान के पास द्वेष नहीं होएगा ये सतयुग हो जाएगा ना। तो इसलिए भगवान ऐसा लीला करता है। तो हम लोग जो लोग सिंसियर नहीं है भगवान के बारे में जानने के लिए, उन लोग गलत समझाएंगे भगवान का ऊपर। तो जैसा ही है, ओके अभी तक ठीक है। So just like the past time, first कृष्णा आने के पहले जो बलराम जी आया है, तो बलराम जी तो पहला देवकी का घर में उनका जन्म है, लेकिन बाद में वो रोहिणी का घर में ट्रांसफर हो गया है। तो ये तो बहुत अजीब बात है, एक ऐसा ट्रांसफर होता है, एक माँ का घर से दूसरा माँ के घर में बिना शरीर बदल करके, तो एक अजीब बात है। दूसरा तो उसको बाद उसको रोहिणी नंदन कहते हैं। और वसुदेव और देवकी को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है, लेकिन उसको बस पहला 15 साल उसका नाम होता है नंद महाराज का बेटा बोलते हैं। और उनका अंकल बाजा, तो उसका साथ जो संबंध है, मामा, उसका साथ जो संबंध है वो भी एक अजीब बात है, क्योंकि भगवान तो भगवद गीता में बहुत कुछ बताया, शास्त्र दिया है, लेकिन किस शास्त्र में कहा हुआ है तो ये प्यारी भाजा को वो मार डालता है, कोई नहीं मार डालता है ना, लेकिन एक कृष्ण भगवान उनको भाजा को मार डाला, सही है ना, मामा को अंकल। तो ये सब बात, और दूसरी बात, और चौथा बात क्या है, जब कृष्ण भगवान उनका जो लीला है तो वृंदावन में था, उसका साथ बहुत गोपी लोग उनका साथ एसोसिएशन लिया है, लेकिन बाद में जब शादी किया है, कितना लोग के साथ शादी किया, 16,108 गोपी के साथ शादी हुआ उनका। तो ये सब बात कॉमन साधारण मनुष्य लोग के लिए समझने के लिए बहुत मुश्किल है, तो ये सब कंट्रोवर्सी होता है। तो इसलिए भगवान ऐसा उन लोग अवतार लेता है, लेकिन जिन लोग भगवान के बारे में उनका सीरियस जानने की कोशिश नहीं करता है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए भगवान बार बार अवतार लेता है, क्योंकि हमारा मन को अट्रैक्शन करने के लिए भगवान ये सब लीला करता है। तो जब हम इस भगवान की लीला
हम अथॉरिटी से हम सुनेंगे, इसके बारे में पूरा अर्थ हमको पता चलेगा। तो अभिनव दूसरा हमारा, तो ये हम देखा है। इस भगवान अवतार करने का क्या आवश्यकता है? पहला अवतार कृष्ण भगवान ने कहता है बीजमाम सर्वभूतानाम, मैं ये सबका बीज, तो जो भी मनुष्य, जो भी लिविंग एंटिटीज है, सबका भगवान ही है, बीज है, और सब जीवात्मा उनका अंश है। भगवान इसलिए अवतार लेता है, हम जो जीवलोक बद्ध लोग इस भौतिक जीवन में बंधा हुआ है, हमको उद्धार करने के लिए भगवान खुद अवतार लेता है। लेकिन हम लोग भगवान का क्या संबंध है वो हम लोग भूल गया। तो वो संबंध स्थापित करने के लिए, फिर स्थापित करने के लिए जो भूला हम लोग, उसको स्थापित करने के लिए भगवान खुद अवतार लेता है। अदरवाइज भगवान इधर अवतार लेने का कुछ कारण नहीं है, क्यों इधर आने का उसका आवश्यकता नहीं है। भगवान तो बहुत खुश है गोलोक धाम में, उनको सेवा करने के लिए बहुत लाखों गोपी लोग है उधर, लेकिन वो खुद इधर क्यों आता है? सिर्फ हमको उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेता है। तो एक संबंध ज्ञान हमको देता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहता है हमारा संबंध क्या है? जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्यदास, हम सब लोग भगवान का सेवक है, यही हमारा असली संबंध है। बाकी जो भी संबंध हम लोग इधर अभी है वो सब टेम्परेरी है, तक वो परमानेंट नहीं है। लेकिन जो भगवान को जो संबंध होता है वो एटर्नल, मतलब वो अवश्य सदा है, सनातन है। हमारा जो स्वरूप, असली स्वरूप क्या है? भगवान को हम लोग सेवा करने का, हम लोग भगवान का सेवक है। ये कभी बदल नहीं होता है। लेकिन हम लोग इसको भूल जाके हमारा आइडेंटिटी भूल जाता है। हम लोग सोचता है हम पुरुष है, हम स्त्री है, हम ये मैनेजर है, हम ऐसा हम लोग आइडेंटिटी लेता है। तो ये हम लोग इसका ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन से हम लोग भगवान का असली संबंध हम लोग भूल जाता है। तो हम लोग इस दुनिया में, एक दुनिया है सागर जैसा है, ये सागर में हम लोग डूब रहे हैं। हाँ, बहुत कष्ट मिल रहा है। जैसा हम लोग 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ में हम लोग बार बार जन्म लेता है, हर जन्म में इतना कठिन परेशान हो देता है हम लोग को। लेकिन भगवान जब आते हमको उद्धार करने के लिए, हम लोग प्रयत्न नहीं करता है भगवान को हाथ पकड़ के हम निकलने के लिए। जैसे ही अभी हम लोग देख रहे हैं केरला में अभी क्या हुआ, इतना बाढ़ आया, जो भी बहुत अमीर लोग भी है, गरीब लोग भी, सब लोग किसी को पर उसको सेव नहीं कर सकता है ना। तो ये दुनिया में ऐसा ही है, तीन तरह से दुख मिलते रहते हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, तो दुख हमको हमेशा मिलते रहता है। तो ये दुख से कोई भी नहीं बचा सकते। आप कितना भी अमीर होने दो, आप कितना भी आपके पास फेम, पावर, पोजीशन जितना भी होने दो, लज्जा, लेकिन ये तीन दुख से आप कोई भी नहीं बचा सकता है। तो सिर्फ कृष्णा की कृपा से हम इसको इस ओशन से हम बचा सकता है। तो ये बात हम समझाने का। इसलिए भगवान खुद आके हम एक भव सागर से हमको बचाने के लिए भगवान खुद अवतार लेता है। तो कैसे भगवान आता है? भगवान अपना नाम से आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवत गीता से हमको उपदेश देता है अर्जुन द्वारा, और इतना सुंदर बहुत अच्छा लीला करता है। वो लीला का बारे में स्मरण कर सकता है। और प्रभु उनको प्योर डिवोटी, शुद्ध भक्त को हमको उद्धार करने के लिए इधर भेजते हैं। तो वैसे ही बहुत तरीका से हमको उद्धार करने के लिए भगवान बहुत प्रयत्न करता है। तो हम इसको लाभ उठाने का बहुत आवश्यकता है। तो अभी हम ये जो भगवान जन्म लेने के पहले देवकी को 6 पुत्र हुआ, तो ये 6 पुत्र का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे।
हम सबको मालूम है, तो जैसा देवकी और वसुदेव को उनका शादी हुआ तो कंस ने अपने रथ से उन दोनों को लेके जा रहा था। तो उसमें उस टाइम आकाशवाणी से उनको तो देवकी का आठवां पुत्र वो तो भगवान श्री कृष्ण उसको वध करेंगे। तो ये बात सुन के वो तुरंत क्या किया, देवकी को मारने के लिए उन्होंने कोशिश किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दैट this article in English you explain in Hindi. So this is very important that behavior of Kamsa, why Kamsa suddenly turned into a demon willing to kill Devaki. ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि जो कंस क्यों देवकी को मारने के लिए ऐसा उसने जो है राक्षस वाला व्यवहार किया। तो पहले इसका आकाशवाणी सुनने के पहले उन्होंने बहुत खुशी से उन दोनों को लेके जा रहा था, लेकिन बहुत आकाशवाणी सुनने के बाद उसका पूरा कैरेक्टर चेंज हो गया। तो why it is happened? Because when you are put into a pressure, when you are really put into a situation where then your real character comes up, right? जब हम लोग भक्त लोग के साथ संग लेते हैं उस टाइम बहुत अच्छा लगता है, सबका साथ हंसता है, आलिंगन करता है, सब करता है। लेकिन जब भक्त लोग के साथ सेवा करने के टाइम होता है हमारा ईगो क्लैश हो जाता है। सही है नहीं है? हाँ, एक्सपीरियंस है सबका। मेरा बात वो नहीं सुनता है, उनका बात हम नहीं मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं है, ऐसा बात होता है। फिर भक्त लोग के साथ झगड़ा हो जाता है, होता नहीं है? होता नहीं है भक्त लोग के साथ। लेकिन भक्त लोग के साथ झगड़ा नहीं होना चाहिए। सही है? क्योंकि हम लोग किसके लिए इधर आए? हम लोग साथ में कृष्ण गुरु सेवा करने के लिए, कृष्ण भगवान को सेवा करने के लिए आया। लेकिन अगर वो बात हम लोग सेंटर में नहीं रखेंगे, हम लोग के बीच में हम जो कह रहे हैं वही वो बात वो सुनने का, ऐसा हमको ईगो आता है, फिर हम लोग को बीच बीच में झगड़ा हो जाता है। तो यही प्रॉब्लम है। तो जैसा ही है तो हम जब तक उनको इंटरेस्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तुरंत उसको देवकी को मारने के लिए वो तैयार हो गया। तो यही बात है। तो जब हम भक्त लोगों के साथ सेवा करने के टाइम हमारे ईगो से जब आता है वो कंस पैदा होता है, हमारा कंस जो अंदर है हमारा ऊपर अंदर वो बाहर आ जाता है। तो ये बात हम समझाने का, इसलिए हम बहुत विनम्रता से हम भक्तों के साथ सेवा करने का, अगर कोई दोष हम लोग का ऊपर बोला हुआ है तो हम भी बहुत विनम्रता से उनको सुन के हम उसको कैसा पालन करने के इसका बारे में हम सोचना चाहिए। कभी भी हम झगड़ा नहीं करने का चाहिए और हमारा गुरु का मिशन का हानि नहीं पाना चाहिए। सही हो? तो देवकी और वसुदेव को प्रिजन में डाल दिया और जो बच्चा हुआ है उनका 6 बच्चों के लिए कंस ने मारने के लिए तैयार हो गया और मरा भी है। तो ये 6 बच्चों कौन है? इसको पीछे एक कहानी है। तो क्या है, एक बहुत साल का पहले एक मुनि था, उनका नाम मरीचि है। तो मरीचि को तो 6 पुत्र हुआ। तो इन 6 पुत्रों बाद में उनको शाप मिला है। तो ये 6 पुत्रों बाद में जन्म हुआ है देवकी के बाद। तो उसको क्यों मार लिया? तो क्योंकि उन्होंने एक बार ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी ने उनका एक लीला भगवान का योग माया से एक लीला हुआ है। तो उनका जो बेटी उनका नाम वाक, उनका ऊपर पीछे उनका अट्रैक्शन होके पीछे चला गया। तो ये देख के ये 6 पुत्र लोग क्या किया, उसको हंसाया उसको ब्रह्मा का ऊपर। तो ये एक वैष्णव अपराध हो गया। तो ये वैष्णव अपराध होने से क्या हुआ, उनको शाप मिला है। तो ये तो डीमंस असुर का वंश में जन्म लेना पड़ा और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पुत्र बनाया। बाद में वो नहीं, हिरण्यकशिपु का पुत्र जो कालनेमी था उनका पुत्र से हुआ। तो हिरण्यकशिपु उसका ग्रैंडसन मतलब होता। तो ये 6 children, so they took birth as the grandsons of Hiranyakashipu. तो बाद में
कंस ने 6 लोग क्या किया, पुत्र ने तो उन लोग तपस किया, क्योंकि उन लोग को तपस ब्रह्मा से तपस करके उसको वरन मंगाया कि वो बहुत शक्तिशाली होने के लिए। लेकिन हिरण्यकशिपु इसको ऊपर बहुत गुस्सा होकर उनको शाप दिया, मैं ही भगवान है, मेरा छोड़ के आप ब्रह्मा का पास आप लोग गए थे, इसलिए हम आपको शाप देता है, आप अगला जन्म में आपका पिताजी के हाथ में आप लोग को मार डाल देंगे। तो यही है। तो क्या हुआ, ये जो कालनेमी है वो अगले जन्म में कंस का रूप में आया और ये 6 पुत्र लोग देवी के घर में आया। तो कंस को मालूम नहीं है, तो वो एक्चुअली क्या है, अपना पुत्र ही है, वो मार डालता है। तो कंसा वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। तो ये एंड और आचार्य एक्सप्लेन, हमारा जो आचार्य लोग एक्सप्लेन करता है 6 सन का क्या इम्पोर्टेंट है, व्हाट दे रिप्रेजेंट। तो मरीचि जो तो मुनि बोलते हैं ना, उसको ही इज रिप्रेजेंटिंग आवर माइंड। एंड जो 6 पुत्र है, काम, लोभ, क्रोध, मत्सर्य, मोह और मद, ये तो 6 शत्रु है हमारा मन में है। तो ये इसको एक 6 वचलों का समान है। हाँ, तो जब ये 6 रूप में ये 6 अनंत है हमारा मन में, तब तक कृष्ण भगवान हमारा मन में नहीं आएंगे। जब तक देखते हैं ना हम कंस 6 पुत्र कंस ने मारा है, फिर बाद में ये 7वां बलराम जी ने पैदा हुआ, बाद में कृष्ण भगवान ने आया। तो जो ये 6 पुत्र जब तक हमारा पास ये जो 6 अनंत है, जब तक भगवान हमारा मन में, हमारा कॉन्शियस में नहीं आएंगे। तो ये जन्माष्टमी का ये भी है, जब तक, तो ये जन्माष्टमी हम ये समझने का, तो जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, कई बार भक्त लोग सवाल पूछते हैं, तो हम लोग इतना साल से जप कर रहे हैं, लेकिन हमको कृष्ण भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उनका अनुभव नहीं हुआ है, उसका क्या कारण है? उसका कारण यही है, तो जब तक हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, फिर भी हमारा मन में ये जो 6 अनर्थ होता है, तो हम निकालने के लिए हम कोशिश नहीं करता है, फिर इसलिए भगवान का नाम में रुचि नहीं आता है हमको। तो जब ये 6 अनर्थ पूरा निकल जाएंगे, फिर हमको पूरा रुचि भगवान का नाम आएंगे, फिर हम भगवान को कुछ स्पर्शन कर सकता है। तो यही बात है, इसका पीछे 6 जो क्यों ये 6 बात का इसका अर्थ क्या है? So therefore we must be work hard to remove these 6 anarthas. So जब this after the removal of 6 anarthas also Krishna did not appear. उसके बाद कौन आया? बलराम जी आया। तो इसका मतलब क्या है? So this after removing the 6 anarthas also, it is not that we can get Krishna. We can get Krishna only by the mercy of Guru. That's why Balram ji represents the original Guru, Adi Guru. तो बलराम जी ने उनका कृपा से, गुरु जी का कृपा से ही हमको कृष्णा का दर्शन मिल सकता है। तो इसलिए बलराम जी गुरु represents बलराम जी। So when बलराम जी ने उनको जब 6 भक्त लोग मारने के बाद 7वां उनको घर में आया, तो बलराम जी ने उस देवकी का घर को पूरा तैयार किया, ताकि भगवान आगे आने वाला है। तो भगवान का सेवा, बलराम जी का सेवा है, भगवान का आने के लिए तैयार कर रहे हो, तो वही उनका सेवा है। So Krishna can appear. स्वरूप देवकी जो माता है, उनको क्या है? She represents pure devotion. उनका जो धर्म है वो प्योर शुद्ध भक्ति का। तो रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम अनुकूल्यन कृष्णाशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो शुद्ध भक्ति क्या होता है? जब हम भगवान को प्रेम से, कोई इच्छा से हम सेवा करेंगे, कोई इच्छा नहीं और नहीं होना चाहिए, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए हम सेवा करना चाहिए, वही एक ही लक्ष्य होना चाहिए। और हम सेवा करेंगे, हमको पोस्ट मिलेंगे, पोजीशन मिलेंगे, प्रेस्टीज मिलेंगे, बहुत भक्त लोग हमको आदर करेंगे, ये सब हम लोग सोचेंगे, फिर हमको वो सब मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं मिल जाएगा, भगवान का कृपा हमको नहीं मिल जाएगा। तो इसलिए हम
कृष्ण भावना में क्यों आया, इसका लक्ष्य क्या है, इसका बारे में हमारा लक्ष्य कभी भी बदल नहीं होना चाहिए। सिर्फ भगवान को सेवा करने का, भक्त लोग का सेवा करने का, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो दैट इज प्योर भक्ति। ये हम देखा, फिर भगवान ने जन्म लिया, तो इसके बारे में क्या हुआ, तो ये जो 6 भक्त लोग मर चुका है, लेकिन बाद में जब कृष्ण भगवान ने कंस को मारने के बाद जब द्वारका में था देवकी के साथ, तो देवकी ने भगवान से रिक्वेस्ट किया है, आप तो मेरे को मालूम है, आप तो आपका गुरु का पुत्र जो मरा है, तो उसको आप वापस उनको लेके आया। वैसा ही मेरा ये जो 6 बच्चा जो कंस ने मारा, उसको वापस आप लेके आ सकता है। तो भगवान खुद किधर जाके लेके आया, वो सीधा सुतल लोक में गया। सुतल लोक में कौन है, बलि महाराज है। तो उधर से वो 6 भक्त लोग को वापस लेके आया और देवकी को दिया। तो जब भक्त देवकी अपना बच्चा को देखा, उसको माँ का प्यार से उनका बहुत प्रसन्न हो गया, तो उनको अपना उसको दूध दिया। तो क्यों, तो ये दूध पीने के बाद उनको लिबरेशन हो गया, क्योंकि इसका पहले कृष्ण ने देवकी का माँ जब जन्म हुआ, उसको पहला उनको दूध दिया है, तो वो महाप्रसाद हो गया। तो महाप्रसाद खाने से अभी उनको मुक्त मिल गया। यही बात है। So we must be very careful to remove this। तो हमारा अनर्थ जो होता है वो निकालने के लिए हम बहुत प्रयत्न करने का, वे तो आसान में नहीं जाएंगे। हम इसके लिए क्या करने का, बहुत सावधान से हर रोज जप करने का और बहुत विनम्रता से भक्त लोगों को सेवा करने का, यही 2 उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। So now अभी हम देखते हैं श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा माधवेश्वर की जय, श्री गौरधार की जय, श्री जगन्नाथ की जय, श्री करुणा वसुदेव भगवान की जय। तो हम वसुदेव और देवकी का उनका जीव चरित्र से हम क्या सीख सकता है, तो इसके बारे में हम very important lessons Devaki and Vasudeva is giving us. What is that? जब आप देख रहे हैं देवकी, उनको पहले जन्म से बहुत साल उन्होंने तपस्या किया, बाद में कृष्ण आने उनका जन्म हुआ, उनका जन्म दिया। लेकिन वो जन्म होने के बाद क्या हुआ, उनका तो लाइफ तो हम देख सके बहुत मिजरेबल है, बहुत कष्ट था। क्योंकि जब उनका शादी का दिन से उनका पूरा कष्ट शुरू हो गया है, सही है। तो पहले उनको जेल में डाल दिया, फिर जेल में ही पूरा दिन उन लोग लाइफ 15 साल उधर ही उन लोग रहना पड़ा। लेकिन देवकी कभी भी वो कृष्ण भगवान से ये नहीं पूछा है, मैं तो इतना कष्ट ले रहे आपको जन्म देने के लिए, ऐसा कुछ सवाल नहीं पूछा है। देवकी को मालूम है उसको 6 पुत्र कंस ने मारने वाला है, फिर भी उनको 6 पुत्र को जन्म दिया है। अगर सोचिए हम लोग भी पेरेंट्स हैं, किसी को ऐसा दुख मिल गया, हम लोग इसको सहन नहीं कर सकते है ना। फिर भी देवकी को मालूम है वो सहन करने के लिए वो तैयार था। तो ये बात क्यों हुई, वो उनको मालूम है कृष्णा का प्लान इसका पीछे है, कृष्णा आने वाले का प्लान है, कृष्णा आने के लिए हम तपस्या करना पड़ेगा। कृष्ण भावना में हम जब आता है, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग प्रवचन में सुन रहे हैं, आप जाप कीजिए आपका पूरा जीवन में कष्ट पूरा निकल जाएंगे, बात तो सही है। लेकिन ये बात भी है कि हमारा जो कष्ट हम कृष्ण भावना आने के बाद भी हम लोग हो सकता है कष्ट मिल जाएंगे, और लेकिन ये कष्ट हम कैसा लेने का, देवकी जैसा, क्योंकि कृष्णा हमको मिलने के लिए पहला हम शुद्ध होने का, और ये सब कष्ट हमको शुद्ध करने के लिए कृष्ण भगवान खुद अरेंज करते हैं हम लोग। तो ये बात हम लोग समझने का बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देवकी का देखिए, जितना उनका कष्ट, उतना कष्ट में हमको किसी को भी ऐसा उसमें 1% भी नहीं हो सकता है, सही है नहीं है? हाँ, फिर क्यों हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं? कभी कृष्ण भगवान कभी ऊपर गुस्सा हो जाता है हम लोग,
हम तो जब कर रहे इतना साल से, फिर भी हमको इतना कष्ट मिल जाता है। तो ये बात सही नहीं है। तो जो भी कष्ट आता है वो सब कृष्ण भगवान का प्लान होता है। जैसा वासुदेव भी देखिए, वासुदेव हमारे इंडिया में पिताजी लोग को बच्चा के ऊपर अलग प्यार हो जाता है, बहुत प्यार हो जाता है ना। वो जब कृष्ण भगवान ने जन्म दिया, वो क्या बोले, तुरंत बोला मेरे को इधर से निकाल के उधर गोकुल लेके जाने का। उसको 1 घंटा भी समय नहीं दिया उनके पास रहने के लिए। हाँ, तुरंत आदेश दिया, तुम मेरे को उधर गोकुल में लेके जाओ और वापस तुम आके जेल में रहो, ये आदेश दिया है। और वसुदेव ने क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला, तुरंत आपका आदेश इमीडिएटली पालन करेंगे। तुरंत उसको लेके गया गोकुल में और उधर छोड़ के वापस आके फिर कंस में उनका जेल में रहना पड़ा। फिर कृष्ण भगवान 15 साल होने के बाद, 10 साल 15 साल होने के बाद, तब तक वो जेल में ही था। सिर्फ उन कृष्ण भगवान को नहीं देख भी नहीं सकता था, लेकिन वो सुन रहा था कृष्ण भगवान कैसा है, उस कैसा लीला करता है, वो अच्छा है। क्योंकि उसको मालूम है कंस से बहुत असुर लोग को उधर भेज देता है उनको मारने के लिए, लेकिन उसके बारे में कभी भी सोचते रहता है। तो ये जो उनका एग्जाम्पल है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोग का लाइफ क्या है, पूरा भगवान का खुश करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए अपना जीवन अर्पण किया है। तो यही बात है, हम लोग भी जब भगवान को, अगर आपको कृष्ण भगवान को कृपा चाहिए, कृष्ण भगवान चाहिए, तो हम लोग भी एक प्रिंसिपल हमारा लाइफ में पालन करने का बहुत जरूरी है। हम जितना भी होने दो, हम कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। जितना भी कष्ट हमारा जीवन में आने दो, हम जप करने का, बाबा भक्त लोग का साथ संग रहने का और सेवा करने का, ये बात हम कभी भी भूलना ही चाहिए और इसको हम हर रोज पालन करने का बहुत आवश्यकता है। क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग कृष्ण भगवान में आता है, लेकिन कोई कारण से वो छोड़ कर भी जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, don't be surprised that devotees leaving Krishna consciousness. Be surprised that devotees are staying in Krishna consciousness. Right? So we should be surprised because हमको, क्योंकि ये मेटीरियल जो भौतिक जहाँ है, सबको प्रश्न है, सबको पास प्रॉब्लम है। किसी का आप पूछो, वो बताएगा, पूरा लिस्ट बताएगा कितना प्रॉब्लम है। तो अगर आप प्रॉब्लम का पीछे चढ़े रहेंगे, हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं सकता है। तो ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर हमारा लाइफ में एक चैलेंज है। जैसा वसुदेव और देवकी जितना चैलेंज फेस किया है, लेकिन उनको पूरा, उनको एक्सटेसी, उनका जो, इसका मतलब ये नहीं है कृष्ण भगवान है दुखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो दुख में अंदर भी बहुत सुख है। वो क्या है, हम कृष्ण भगवान को सेवा करते हैं, भगवान हमारा सेवा में प्रसन्न हो गया है, तो यही हमको खुशी देता है। इस कारण से देवकी और वसुदेव वो पूरा कष्ट को सहन कर सकता है। तो हमारा, तो इसलिए हम ये जो टेम्पररी जो सिचुएशन टफ, हमारा काम में प्रॉब्लम होता है, फैमिली के साथ प्रॉब्लम होता है, रिलेशनशिप, वो सब टेम्पररी है। लेकिन क्योंकि हमारा जो जन्म, तो ये कृष्ण भगवान कैसे भी हम मिलने के लिए हम प्रार्थना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो गोल से वी शुड नॉट लीव फ्रॉम दैट पॉइंट। तो आज का क्लास से हमको क्या पता चला, समरी। पहला, भगवान का जो जन्म हुआ है कैसा है, वो कैसा दिव्य है, और ये भगवान का लीला जानने का बहुत आसान नहीं है। हम इसलिए प्रॉपर अथॉरिटी से हम सुनने का बहुत आवश्यकता है। और कृष्ण भगवान ने इसलिए अवतार हुआ है हमको संबंध ज्ञान देने के लिए। तो हमारा संबंध क्या है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, हम सदा भगवान का सेवक है, यही हमारा नित्य संबंध है। हम सब लोग भगवान का सेवक है। और जो 6 sons of मरीचि, जो मरीचि का 6 पुत्र का क्या, वो 6 हमारा 6 अनर्थ का उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो हम निकलना चाहिए, उसको प्रयत्न करना चाहिए। तो इसका बाद ही कृष्ण हमारा चेतना में आ सकता है। तब तक हम 6 अनर्थ को निकलने के लिए हम कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमको भगवान का रुचि नहीं मिलेगा नाम में। तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, हर रोज भगवान का नाम बहुत ध्यान से जप करना बहुत जरूरी है। और 4 नियम फॉलो करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग।
ये सब 4 चीज पालन करने का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध नहीं हो रहे भगवान का साथ शांत नहीं हो सकता है। और देवकी और वसुदेव से उनका जो लेसन्स, उनको जो सैक्रिफाइस किया है उनका जीवन भगवान का खुश के लिए, वो प्रिंसिपल हम हमेशा याद करना चाहिए और हमेशा हम गुरु और कृष्ण सेवा के लिए हम सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और जो जन्माष्टमी का जो अर्थ क्या होता है, असली अर्थ तो अनकंडीशनल सरेंडर टू कृष्णा, बिना किसी कुछ शर्त से हम भगवान को सेवा करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो अगर आप एक बार करेंगे तो हम कृष्ण भगवान को शीघ्र प्राप्त हो सकता है। तो यही जन्माष्टमी का पूरा असली अर्थ है। तो ये जन्माष्टमी जो आने वाला है और आगे भी प्रोग्राम्स है, कल भी और परसों भी, कल अविद्या और प्रयोजन के बारे में बात करेंगे डिवोटीज लोग। तो आप सब लोग आके सुन के और ये जन्माष्टमी महोत्सव का पूरा लाभ उठाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्ण। Marichi is compared to mind, right? What is the relation? Because Marichi was one like their sons before, right? And then they became Kalyanis, Surat, and then they take Surat. Yeah. So how come, you said that all the 6 Surats are compared to 6 Anarthas. How come Marichi is compared to mind? Like, I didn't These understand. 6 anarthas are present in our mind. So why Marichi and not Kalini? They were children of Kalini. Oh, Marichi comes in. And that's How what, Marichi comes into the picture. yeah, that's what I read I heard from the lectures. So I don't know exactly what is the detail. You mentioned Marichi's name also in the beginning. Yeah, Marichi represents mind. So this analogy is given by the acharyas. How exactly they related the details.